13th October in the unconscious state. And with my patient is presenting us 36 week of the gestation with excessive nausea, vomiting throughout the pregnancy, and which is a worse from the last 2 weeks. And also complain of the shortening of the breathing, weakness and difficulty in performing the house of activity from last 2 months. My patient is admitted for the for the further workup, and also during the admission, her blood hemoglobin was decreases, and the platelet count also decreases during the admission. So my patient is also admitted for the correction of the anemia. According to my patient, this was an unplanned, spontaneous pregnancy. When 10 days overdue, she confirmed her urinary pregnancy test by confirm her pregnancy by urinary pregnancy test, later on confirmed by the ultrasound that shows single alive fetus which corresponding to the gestation age in a private hospital. And my patient, all investigation is carried out that time. She's all are reassuring, and she took the folic acid regularly. My patient give a history of the excessive nausea and the vomiting during the first trimester, on and off up till now. And she had 6 to 7 episodes per day. Now, whatever she eats, she vomit out. Vomiting is not associated with the fever, lower abdomen pain, jaundice, drug, food, and any food allergy. She went to the private hospital, and they received the treatment in a form of the IV fluid injectable, and also doctor prescribed her some white tablet. But my patient is unaware about the name, and the vomiting is a subside on and off. My patient give no any history of the fever, flu, rash, vaginal bleeding, vaginal discharge, any urinary problem. Her blood pressure was a check that is a normal, and she booked herself in the private hospital and regular antenatal checkup. She felt with a movement at the end of the 5th month. Also, her ultrasound is carried out at the 6th month, that is showing no gross congenital anomaly. Record was normal, and which is a reassured. My patient is a non-compliance with the iron because of the side effect and her taste. At the 6th week, also her hemoglobin done, and that shows the 6 gram per deciliter in the private hospital. And doctor advised her the blood transfusion, but my patient is a refuse, and only she follow the diet. My patient is give the history of the weakness, lethargy, difficulty in performing in the house of activity, also shortening of the breathing when she climbed 6 to 7 stairs, but no history of the chest pain related to the arm, orthopnea, chronic cough, and the palpitation. She is also give the history of beaten nuts about the 3 to 4 packets per day. No any history of the other pica like ice and the mud, and bleeding from the gum, nose, hematuria, and the bleeding from rectal bleeding, heavy menstrual bleeding, and bleeding from the any other orifice, and the easy bruisability and the petechia. No any history of the perineal itching and the worm infestation, any chronic disease, TB, and the fever with the chill, and the chronic diarrhea, and no any history of the blood transfusion, family history of the blood transfusion, and any blood disorders. She takes balanced diet, which is a composed of green leaf vegetable, fruits, eggs, meats, and the legumes. And her oral glucose tolerance test is not done, but no any history of the increased appetite, thirst, and the urination. BP was a normal at the 2nd trimester, and no any history of the headache, blurring of the vision, epigastric pain, lower abdomen pain, vaginal discharge, and any urinary problem, and the swelling in the feet and hands. No any history of the heat and cold intolerance. She is a receiver and tetanus dose at the 7th month. Fetal movement and the abdominal girth is satisfactory up till now, according to my patient. No any history of the lower abdomen pain, vaginal bleeding, and vaginal discharge, and itching in a palm and sole. But now, for the last 2 weeks, we had a severe vomiting and nausea on an she went to the private hospital, received IV fluids and IV injectable, but her vomiting is not subside, and then she is came to the JPMC hospital in the unconscious state. And some in the hospital they give some hydrate my patient and give some injectable, and my patient is stable. And her all investigation is carried out, like regard the blood and urine investigation. Also, her ultrasound is carried out. Her blood investigation shows 7.2 gram, sorry, 6 gram per deciliter. Platelet was 98, and also one during the hospital admission, there is a one blood transfusion is done, and now her HB level is a 7.2 gram per deciliter. Also, her CTG is done, and a plan of the management is not discussed with my patient. My patient had the multiple time admission in the private hospital due to the excessive nausea, vomiting.
Regarding her obstacle history, her first pregnancy is a 5 years ago, spontaneous book and the term pregnancy delivered by the normal vaginal route at the JPMC hospital. But also my patient gave the history of the blood transfusion, two unit blood transfusion during that pregnancy at the 8 month because her hemoglobin is 7, but no any other antenatal, interpartum and postpartum complications. Her आप baby अपनी was स्पीड आप अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो कीजिए क्योंकि बीच जी में मैम थोड़ी सी आपकी साउंड जरा बीच में वाइब्रेट कर जाती ओके डॉक्टर जी मैम है। Uh, according to my patient, she delivered the low birth weight, 1.9 kg, but no NICU admission required, and the baby was breastfeeding and vaccinated. Her second pregnancy, after 1.5 years, occurred spontaneous, ended up of the miscarriage at the first month, followed by the sudden bleeding and lower abdomen pain, but no any history of the intercourse and the trauma, which is a spontaneous extra out at the home, no any complication occurred, no product sent for the histopatho. Her third pregnancy after the 1 year that was ended up also in the miscarriage at the 3 months, and bleeding is start, and she notices she went to the private hospital and the ultrasound is done and see no growth and no cardiac activity seen, and it is also a spontaneous expulsion, and at the hospital no complication is occur and no products sent for the histopatho. Regard her the gynecological history, she had a Manar after 13 years, 30 at the 30 year of age, and with the regular and normal flow 5 by 28. No any history of the dysmenorrhea, dyspareunia, intramasculine dysmenorrhea. And my patient give no any history of the Pap never be done, and no contraception never be practiced. Regarding her past medical history, there is no any history of the diabetes, hypertension, and any cardiac disease, asthma, tuberculosis, and any blood disorder in her family. And my patient give no in she didn't take any drug during the pregnancy. Like only for the nausea and vomiting, and no any history of the drug allergy. No any significant history of the no surgical significant history, and my patient give the history of 2 unit blood transfusion in her previous pregnancy. Regarding her family history, my patient give no any history of the diabetes, hypertension, asthma, cardiac diseases, and also the family history of blood transfusion and any blood disorders. And regarding her socio-economic personal history, she is a known smoker, known addicted, only addict chalia 3 to 4 packets per day, which I mentioned, and her bowel and bladder habits are normal. Sleep and appetite is normal. And also my patient has, regarding her social economic history, she live in the rented house and 1 bedroom, 5 family member. Her husband is selling clothes in the street. All necessity of life meets difficulty. Her general physical examination, 30 years old, thin, lean lady, comfortable sitting on the couch, well oriented. BMI is a 15 kilo kg per square meter. Blood pressure 110 by 90 plus 82. Respiratory rate 80 beat per minute. Temperature 98 Fahrenheit. Patient looks pale. Pallor is seen in the palm but not in a conjunctiva. The capillary filling within the 3 second. Angular stomatitis is present. No radial delay. Her GVP is not raised. Lymph node not accessible. Thyroid is not enlarged. All the systemic examination is satisfactory. Per abdomen examination inspection, there is a abdomen is a protuberant due to the gravid uterus and symmetrically moving with the respiration. The umbilicus is a centrally inverted, no visible vein pulsation, and the scar marks is seen. And styra gravida are not present. Her ear orifices are intact. On the palpation, her height of fundus is a 37 centimeter, lie longitudinal, presenting path cap, and estimate fetal weight is adequate. Fetal heart sound, sorry, like a seems सिंपीजियो to फंडल हाइट कितनी है? सिंपीजियो but फंडल हाइट 27 centimeter. जी 27 centimeter. 27। Doctor. ठीक ठीक है। And Leica seems to be adequate. Her estimate fetal weight is about 1.5 to 1.7 kg, approximate. जी मैम। और लाइकर सीम्स टू बी एडिक्वेट। Yes, ma'am. ठीक है, चलो समराइज करें। Yes, ma'am.
30 years old, para 1 plus 2. Her last child is a 5 years back by normal vaginal delivery. My patient is excessive history of the excessive nausea, vomiting throughout the pregnancy, and multiple visit in the hospital for this complaint. Also weakness and the shortening of breathing. इसमें जब आप समरी बता रहे हो तो उसमें इसकी प्रेजेंटेशन से पहले आप ये बताएं कि इसकी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है. She presented at how many weeks of gestation? Oh yes ma'am, sorry, 36 plus 3 by gestational age. 36 plus 6 weeks of gestation with history of this. जी, with sorry ma'am. ठीक है. With history of excessive nausea throughout the pregnancies, weakness, shortening of the breathing from the last 2 months. Also during the admission, her hemoglobin was 6 and transfused 1 unit of Paxils, and now her hemoglobin is 7.8 gram per deciliter. Her platelet count also 98 lakhs, and बस मैम यही था इनका. और height of fetus is 27 weeks. Fetal heart sound present. Leica seems to be adequate. जी मैम. इसमें बेसिकली आप जो समरी इसकी बताती है उसमें बाकी चीजें सब ठीक हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में सिम्टम्स बताने की जरूरत नहीं है. एक्सेसिव nausea and vomiting with reduced platelets and hemoglobin levels, and clinical examination reveals symphysia fundal heights 27 centimeter. ठीक है. इसमें ये बता देना बस काफी है, क्योंकि इसमें आपने जो सेलियन फीचर्स होती हैं उस पेशेंट की वो ही आपने समरी में बतानी होती है, नॉट द डिटेल्ड समरी. ठीक है मैम. अब इसमें आपके व्हाट आर द issues in the patient, clinical issues क्या है इसमें? Madam, she has multiple issues. Number one, she is a chronic anemia because there is also there is a hyperemesis gravidium. And ma'am, regarding to examination, the height of fundus is a decrease, so it is a small for the gestational age, and also gestational thrombocytopenia. Gestational thrombocytopenia, ये आपका जो क्लिनिकल डायग्नोसिस बेसिकली आपका ये बनेगा. और क्या इसमें रिस्क फैक्टर है? मैम और इसमें जो है इसका BMI रिस्क फैक्टर तो मैम इसका यही है कि मैलन्यूट्रिशन है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लो बर्थ वेट, BMI is a 15. वो प्रीवियस हिस्ट्री की बातें छोड़ के इसको जो अभी करंट इश्यूज हैं हम उनकी बात कर रहे हैं. जी मैम, करंट इशू में तो इसका यही सबसे पहले तो मैलन्यूट्रिशन है, उसका BMI 15 kg पर स्क्वायर मीटर है, और इसका हीमोग्लोबिन जो है 6 है, प्लेटलेट काउंट इज 98. और मैम और she also transfused 1 unit of blood. नहीं, वो तो मैनेजमेंट में आ जाएगा ना जी. और इस फैक्टर मैम जी मैनेजमेंट में आ जाता है, वो इसमें नहीं आएगा. जी मैम. Also my patient is a non compliance with the hematinic. She didn't take the hematinic. This is again not a clinical issue. Okay ma'am. और इसमें क्या आएगा? How you will explain the duration of pregnancy to be at 36 plus weeks and the symphysia fundal height of 27 centimeter? So yes, it's a big clinical risk factor in this patient. Yes, clinical issue इसमें जो main clinical issue है वो ये हो. हालांकि उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आपका एक मेन इशू इस वक्त है पेशेंट्स का, जिसकी बेसिकली आपने फिर मैनेजमेंट की तरफ जाना है. इश्यूज आप वो आइडेंटिफाई करते हो जिनको आपने फिर मैनेज भी करना है. और मैनेजमेंट करने वाले हैं इसमें जो क्रॉनिक एनीमिया है, which may be due to chronic malnutrition, and she has now currently she has been presented with excessive vomiting. Okay? Or excessive vomiting, malnutrition is one thing, leading further to anemia, chronic anemia की वो वजह बन सकती है, and thrombocytopenia, और उसके अलावा उसका जो malnutrition से related है वो उसका BMI भी उसके साथ ही आ जाएगा, and severely growth restricted fetus, या आप इसको small for gestational age कह सकते हो. ठीक है, क्योंकि अभी हमने उसकी जो कॉज है या उसकी कैटेगराइजेशन वो फाइनल नहीं की, उसकी जो ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस है इसको. तो अब इसमें आप इसके हाउ यू विल प्रोसीड फर्दर इन दिस केस. शी इज 36 plus weeks and she has presented with the acute symptoms of vomiting. आप इसके फर्दर कैसे प्रोसीड करोगे? मैम मैं जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहूंगी. Basically you firstly you will discuss the evaluation in this patient. Yes ma'am. For the evaluation I will do the investigations.
In the investigation, I want to know about the specific and the baseline investigation. In the baseline, I want to know about the blood group with the Rh factors, also complete blood picture. In the complete blood picture, I want to know about the hemoglobin, platelets, and the total leukocytes. And ma'am, if there is a hemoglobin is low, then I will go for the indices and with the date. I want to CBC with the date, and I go for the indices and also for the peripheral blood film. And then further investigation is depend on that. And also, madam, in the urine DR, I want to know about the microscopy, pus cells and red cells, and also in the biochemistry, I want to know about the ketones because my patient give the history of excessive nausea, vomiting, and also, ma'am, I know about the protein, glucose, and nitrites. And other, madam, I go for the random blood sugar and viral profile. In the viral profile, I want to know about the hepatitis B surface antigen, anti-hepatitis C virus, and the HIV. And ma'am, I want to also know because my patient is also give the electrolytes is very important in my patient, so I will go for the electrolytes renal function test in my patient. And then, ma'am, for the fetal surveillance, I want to know about the dating scan because there is a disturbancy occur between the her date and the height of fundus. So I will confirm on the dating scan, or if the dating scan not available, then the early scan. Also, the I know anomaly scan and the recent scan. And if the Doppler is available, then I want to know about the Doppler study. But if there is a अल्ट्रासाउंड की बात तो हम बाद में करते हैं. जी मैम. पहले हम इसमें have you completed your list of test? No, ma'am. I want to know about the ferritin and the ferritin level and the hemoglobin and also the stool DR. Ma'am, stool DR for the occult blood and the ova and cyst and the ferritin level and the HbA electrophoresis. इलेक्ट्रोफोरेसिस भी आप इसमें करवाओगे? मैम, क्योंकि अभी तो मुझे उसका पूरा जो है ना इंडाइसिस पता नहीं है ना. इसका पेशेंट का पूरे इंडाइसिस नॉर्मल थे, लेकिन वो ट्रांसफ्यूजन के बाद की रिपोर्ट थी इसकी ना, जिसमें 7.8 आ रहा था और इसके इंडाइसिस पूरे नॉर्मल आ रहे थे. और तो इस वजह से मैंने कहा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस चाहिए मुझे. जी मैम. और मैम, मैं रेटिक काउंट भी कराना चाहूंगी बिकॉज आई विल डिफरेंशिएट इट टू द आयरन डेफिशिएंसी एंड द क्रॉनिक एनीमिया. And with the chronic anemia. Yes, ma'am. Chronic anemia. Chronic anemia due to what? अब इस पेशेंट में जो आपने डिटेल में हिस्ट्री दी, ऑलमोस्ट यू कवर्ड एवरीथिंग इन दैट, लेकिन इसमें व्हाट डू यू थिंक मे बी द कॉज ऑफ दिस एनीमिया? अब हम इसमें बेसिकली she has presented with the multiple problems, so you will evaluate every problem on its own merit, as well as you will correct and you will discuss the management every problem separately. ठीक है. इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें हर चीज को आपने किसी भी चीज को मिस नहीं करना होता उसकी मैनेजमेंट में और इवैल्यूएशन में. ठीक है. अब इसमें जो इस वक्त बेसिकली जो हमें प्रॉब्लम इसमें अगर एनीमिया, क्रॉनिक एनीमिया में भी इसका ये पिछली दफा से चल रहा है, क्योंकि 5 इयर्स बैक जो डिलीवरी हुई उसमें भी उसको 2 ब्लड लगे. अब क्या उसका अपना BMI उस वक्त भी इतना था, ये हमें ये देखना पड़ेगा. एंड व्हाट वाज हर सिचुएशन इन बिटवीन दीस 2 प्रेगनेंसीज? यस मैडम. प्रेगनेंसी हुई और दूसरे के बाद हुई और बीच में 2 एबॉर्शंस भी हुई, उसमें उसके नोजिया, वॉमिटिंग का स्टेटस, एनीमिया का स्टेटस क्या था? एक का तो हमें पता है, लेकिन दूसरी 2 प्रेगनेंसीज का विच एंडेड अप इन मिसकैरेज एंड नाउ द करंट प्रेगनेंसी की भी हमें डिटेल पता है. लेकिन इसके अलावा हमें बाकी इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल और दूसरी जो 2 एबॉर्शंस हैं उनके दरमियान के उसके टाइम पीरियड के साइन सिम्टम्स हमें नहीं पता. Ma'am, I told the patient and she told me that her belt, sorry, जी ma'am, her belt and height is also short and the weight is the same. Like उसका जो weight था वो कह रही थी कि मेरा इतना ही रहता है. पहली प्रेगनेंसी में भी इतना था और उसका जो फर्स्ट हुआ था वो फर्स्ट मंथ में मिसकैरेज हो गया था, उसके बाद उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई. और जो सेकंड हुआ था उसमें कह रही थी कि नहीं मुझे पता ही नहीं चला था, तो थर्ड मंथ था तो उसमें भी कोई ऐसी मुझे हिस्ट्री नहीं दी पेशेंट ने. लेकिन उसकी जो मैम इसकी एक हिस्ट्री थी, मुझे पूछना भी था, उसे इसकी अम्मी ने मुझे हिस्ट्री दी थी कि ये भी खुद जब पैदा हुई थी तो छोटी सी ही थी वजन में. ठीक है.
So I think it is the main thing that I forget ये to क्योंकि mention करना। ये चीज जो जी है मैम। ना, ये कंजेनिटली अगर हो तो दैट कैन अफेक्ट द नेक्स्ट जनरेशन एज जी वेल। मैम। जी क्योंकि अगर वो प्री टर्म थी या जो भी था, वो उसमें डिफरेंट रीजंस हो सकती है ना फॉर स्मॉल फॉर वेट के, क्या वो टर्म पे ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी था या प्री टर्म बेबी था। तो इस वजह से वो प्री टर्म बेबी अगर हो या ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड हो, दोनों में लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं जी मैम। एडल्टहुड में भी। लेकिन इट्स अ टर्म मैडम। जी, वो कह रही थी पूरे महीने की थी पर छोटी सी पैदा हुई थी। ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड थे, ठीक है। जी, रोज रिस्ट्रिक्टेड ही था। अब जी मैम। अब इसमें ये है कि क्या इसको पिछली प्रेगनेंसी में भी वॉमिटिंग के ये इश्यूज रहे? नो मैम। नो, ठीक है, उसमें ओनली नहीं था। सो ओनली द दिस इज द एनीमिया। प्रॉब्लम ऑफ करंट प्रेगनेंसी। यस मैम। तो यस मैम। अब इसमें अगर जो चीजें हम एज्यूम कर सकते हैं कि इसमें पिछली दफा का एनीमिया था, बट probably that was not evaluated properly या adequately, उसको पूरा evaluate नहीं किया गया, and that was randomly treated by giving the blood transfusions। ठीक यस है। मैम। जी मैम। और वो बेबी भी इसका लो बर्थ वेट बेबी था। जी मैम। ठीक है। इट्स अ 9.1 वो भी 1.9 इसमें kg। एक इम्पॉर्टेंट चीज बन जाती है कि वो भी लो बर्थ वेट है और उसमें अनीमिया उसमें भी था। सो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज विच इज क्रॉनिकली प्रेजेंट। अब जी मैम। पिछली दफा का एनीमिया वॉमिटिंग की वजह से नहीं हुआ। शी जी इज नॉट दैट मेल नरिश्ड, के उस तरह से मेल नरिश्ड नहीं है कि उसका अगर फूड इनटेक ठीक है, सब कुछ ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का इनटेक सब चीजें ठीक है, टाइप ऑफ एंड क्वालिटी ऑफ फूड इज ओके। तो मेल नरिशमेंट वाली चीज तो शायद हम उसको सीधा सीधा नहीं कह सकते, एक्सेप्ट फॉर द करंट प्रेगनेंसी जिसमें उसको एक्सेसिव वॉमिटिंग है। जी मैम। So what may be the reason for this chronic anemia which persisted from the previous pregnancy till now? और क्या इन 5 सालों में जो उसका पहली प्रेगनेंसी और अब की प्रेगनेंसी का इंटरवल है, इसको कोई ब्लड लगा या कोई आयरन की इन्फ्यूजन्स या और कोई चीज इसको ऐसी इसने रिसीव की फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, और हैज शी बीन एवेल्युएटेड फॉर एनीमिया इन मैम दिस? जी, she is not evaluated for the anemia. She gave the history that she is only 2 unit is transfused during the first pregnancy, and then according the is also, and I think in this हम्म, hyperemesis there। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। Hello। हाँ जी जी। जी, and ma'am, maybe in this pregnancy, whenever she eats, she is vomit out. I think इस previous मेल इसको। न्यूट्रिशन फैक्टर इस प्रेगनेंसी में तो है, जी मैम। लेकिन और हम इसके एवेल्युएशन हाँ की बात कर रहे हैं क्योंकि जहां पे आपने ये बताया कि आरबीसी इंडेक्स, बिकॉज वी हैव टू डिग आउट द हिस्ट्री। जी मैम। इसमें बेसिकली जब आपको एक चीज नहीं पता होती, आप उसको सिर्फ सिम्टोमेटिकली मैनेज कर रहे होते हैं बाय गिविंग द ब्लड, जैसे इसको पिछली दफा भी लगा, इस दफा भी लगा, जी मैम। वो इट वाज इंडिकेटेड ऑन 6 एट टर्म, लेकिन इसमें हमने एवेल्युएशन की बगैर हम इसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो इसमें एवेल्युएशन में अभी तक जो चीज नहीं हुई, अब जाहिर है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन जब आप सीबीसी करवाते हैं और आरबीसी इंडिसेस ये सब चीजें करवाते हैं, तो बहुत सारी पिक्चर चेंज हो जाती है, ब्लड पिक्चर आप उस पर जी इंटरप्रेट नहीं कर सकते उस तरह से कि इसमें कॉज एंड टाइप ऑफ अनीमिया क्या है। तो इस पे आप क्या अब इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओगे? मैम Knowing फिर। that she has received जी one blood जी मैम। और सैंपल इसका पोस्ट ट्रांसफ्यूजन सैंपल था जो गया इसका जी मैम। एनालिसिस के लिए, जी मैम। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन सैंपल से तो हमें नहीं पता चलेगा। जी सो मैम। यू कैन बी आस्क्ड फॉर दिस थिंग कि अगर आपने ये सारा और ये कि ब्लड पिक्चर जो है वो कैसे चेंज हो जाती है आफ्टर गिविंग द ट्रांसफ्यूजन, उसमें तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। और क्या, लेकिन क्या आप अब नोइंग कि ये आरबीसी इंडेक्स ठीक है, इसका सीरम फेरिटिन भी यकीनन ठीक ही होगा आफ्टर रिसीविंग द ट्रांसफ्यूजन, तो क्या आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओगे इसमें? नहीं मैम, फिर मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि ये नहीं कराओगे, नहीं इसलिए कराऊंगी। कि उसमें भी आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जी मैम। तो इसमें कम से कम अब जो है ना, इसका ये वाली चीजें अब इसमें इतनी एवेल्युएशन के हिसाब से हम इन किसी भी चीज पे रिलाई नहीं कर सकते। जी What is मैम। an idea of doing stool examination in this patient and the retic count? मैम इन द स्टूल एग्जामिनेशन इसका हुआ नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि हमें कराना चाहिए
because there is a decreased absorption of the iron if there is any history of the worm infestation. और हम लोग क्योंकि 70% हमारी जो आबादी है वो इसी से बिलोंग कर रही होती है, तो लो से उससे, तो इस वजह से मुझे इसको मैंने मैनेजमेंट में यही रखा है कि मैं इसको डीवॉर्म कर लूंगी पेशेंट को, because there is a stool DR stool examination, one time stool examination आपको शायद को जी properly मैम, it's a उस तरह की three information ना दे. जी, it's a So three it is better consecutive. to deworm the patient once Yes she is settled. madam, I will put in my management because madam और we उसकी will वजह आप ये जी मैम, हाँ जी, उसकी वजह आप ये बताओगे कि सेफ जी मैम, ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी कितने % पॉपुलेशन को है. ठीक है मैम, एक चीज हो गई. जी मैम. अब रेटिक काउंट ठीक है आपने मैम. इसमें क्यों करवाया? मैम बिकॉज माय पेशेंट इज अ क्रॉनिक एनीमिया, सो आई वांट टू नो अबाउट दैट कि कोई इसको कोई बाय मतलब डूइंग रेटिक काउंट आपको क्रॉनिक एनीमिया की कौन सी कॉज पता चलती है? Madam, by the retic count, if there is a retic count is more than the 2% and the less than the 2%. If there is a less than 2%, then it's indicate any inflammatory conditions, any liver diseases and kidney diseases, and also the early deficiency of the iron. And if it is a more than the 2, there is we divided into two groups. There is an intrinsic factor and the extrinsic factor is involved. Maybe any hemolysis is occur. Then means thalassemia, sickle cell anemia, any glucose 6 phosphatase deficit. बेसिकली जो इंक्रीज्ड रेटिक काउंट होता है वो आपको हेमोलिसिस का, इसका सिंपल आप आंसर ऐसे दो कि ये हमें क्रॉनिक अगर हेमोलिसिस चल रही है तो उसमें होगा, लेकिन जहां पे क्रॉनिक हेमोलिसिस चल रही हो वहां पे एलएफटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज बाय हेमोलिसिस ऑफ द आरबीसीज बिलिरुबिन इज आल्सो रिलीज्ड. Yes ma'am. Bilirubin should be increased in these cases. तो इसलिए क्रॉनिक हेमोलिसिस की वजह ये बनती है. दो नो क्रॉनिक डिजीज हैज बीन आइडेंटिफाइड एज पर हिस्ट्री. ना हिस्ट्री पे और ना एग्जामिनेशन पे हमें कोई ऐसी वजह मिली कि जो इसमें कोई क्रॉनिक हेमोलिसिस या क्रॉनिक पैथोलॉजी को इंडिकेट कर सके. जी. Now back to the investigation. जी मैम. इसमें what else you will like to do in this patient? इसमें आप इसके क्लिनिकल सिचुएशन के हिसाब से आप और क्या टेस्ट करवाना चाहोगे? मैम एक तो मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स बता दिए. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए. जो चीजें आपने बता दी हैं इसके अलावा मैम और तो अल्ट्रासाउंड रहता है मेरा. बाकी आपके ख्याल में इसका इतना एक्सेसिव वॉमिटिंग क्यों है? मैम बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी. व्हाट कैन बी द रीजंस फॉर हर? बल्कि इसकी तो सिंस कंसेप्शन ही इसकी आप वॉमिटिंग की हिस्ट्री आप बता रहे हो. जी मैम. ठीक है. तो बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी मैम. Because of the pregnancy, because the beta HCG level is increased during the pregnancy, so it is estimated. Pregnancy में भी था. अगर कुछ पेशेंट जो होते हैं सेंसिटिव टू बीटा HCG, वो तो फिर इसकी 3 प्रेगनेंसीज पहले भी गुजरी हैं, but there is no such history of vomiting in the last pregnancies. Yes, madam. But madam, in this pregnancy, I evaluate every cause of the nausea and vomiting, and my patient give not any cause, like any reason for the vomiting. So, sorry, ma'am. और इसमें क्या टेस्ट करवाना चाहोगे? What can be the other reasons for vomiting? आप इसको इस हिसाब से सोचो कि what can be the other reasons for excessive vomiting in this patient? Ma'am, maybe any infection, appendicitis or any other infection. Pregnancy में तो नहीं ना रह सकती, वो तो एक acute cause है. जी मैम, any stones or acute liver disease in the pregnancy. And ma'am, any allergy from the ना भी हो, chronic भी liver disease हो तो वो भी कर सकती है. जी मैम, कोई भी लिवर डिजीज. जी मैम. और क्या वॉमिटिंग से लिवर फंक्शन टेस्ट इफेक्ट होते हैं? यानी ये वाइस वर्सा इफेक्ट हो सकता है कि लिवर वॉमिटिंग कर रहा हो और वॉमिटिंग लिवर फंक्शन को प्रॉब्लम कर रही हो. क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है. सो यू विल गो फॉर द LFTs as well in this case. ठीक है मैम. जी मैम. We will go for the thyroid function test in this case. Okay, ma'am. Thyroid function test के markers, उसके जो clinical stigmas and that may not be very obvious in many cases. But so madam, I will also elaborate in my history. There is no heat and cold intolerance.
So can Yes, I go for I the? know. मैंने यही बात आपको कही है कि there जी are मैम, no symptoms, no clinical signs pertaining to this particular disease, but still you will go for it because ठीक है first मैम, time she is having it, and the more importantly and the more commonly, ये ठीक है मैम। गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, तो वो स्पेसिफिकली हिस्ट्री जो है वो आपने उससे पूछनी है गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड के क्या उसको उसके लिए जो उसने बेसिकली ड्रग रिव्यू इसमें बहुत जरूरी होता है कि अब तक इसके इसके मल्टीपल एडमिशंस हो चुके हुए हैं, तो आपने इसके जो पिछले एडमिशन जो पिछली इसकी ड्रग हिस्ट्री है वो कहाँ तक आपने एक्सप्लोर की कि व्हाट शी हैज टेकन सो फार, क्या उसमें ये सारी चीजें कवर हुई। ये मल्टीपल जब उसके एडमिशंस होते हैं तो डेफिनेटली उसके टेस्ट भी होते होंगे, उसकी ट्रीटमेंट भी मिलती होगी। सो यू हैव टू रिव्यू हर ड्रग हिस्ट्री, प्रीवियस ड्रग हिस्ट्री एज वेल एज पेशेंट। आपको खुद भी अगर थोड़ी बहुत भी अगर पढ़ी लिखी है तो वो आपको कुछ ना कुछ बताती होगी कि हर दफा सिर्फ क्या ट्रिप्स ही लगती थी, क्योंकि बाद दफा सिर्फ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट चल रही होती है वॉमिटिंग के हिसाब से कि उसको सिम्टोमेटिकली मैनेज करके फिर पेशेंट को घर भेज दिया, दोबारा हुई तो फिर आ गई। जी मैम, इसके साथ यही हुआ था कि इसने मुझे बताया था कि मुझे कोई ड्रिप्स लगाते थे और उसके बाद जो है मेरी वॉमिटिंग, उसमें कुछ इंजेक्शंस भी डालते थे, फिर मेरी वॉमिटिंग सेट हो जाती थी। वो तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हुई ना, जी मैम। ग्रेविनेट डाल देते होंगे जी या और इस तरह की चीजें, कोई जी मैम। एंटासिड्स वगैरह डाल देते होंगे। ठीक जी है, मैम। जी तो मैम। गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड भी चीजें इसकी एक वजह बन सकती हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज कॉजेज जो हमने जिसको हमने इन्वेस्टिगेट भी किया और जो हमने हिस्ट्री पे भी पूछा। ठीक है मैम। ठीक है, तो जी ये मैम। सारा कुछ आप इससे पूछोगे। ओके मैम। अब इसमें हम आते हैं फॉर द फर्दर, बेसिकली हमने इसमें अभी हम वर्क पे चल रहे हैं। इसका प्लेटलेट काउंट आपने मुझे बताया 98। जी मैम। ठीक है, तो जी मैम। 98 वाले को आप कैटेगराइज कैसे करोगे? शी सो फार शी डजंट हैव एनी ब्लीडिंग एपिसोड्स फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम एनी अदर साइट। मैम, आई वांट टू नो अबाउट द को आप कैसे पी कैटेगराइज करोगे? Ma'am, I want to know about the PT and APTT. And 98 is it is a it is due to the pregnancy, and it's How you can say definitely that this is due to pregnancy? ma'am, it is because my patient, her previous platelet count was normal, and also check in the private hospital according to my patient, and I will repeat the platelet count after the 5 to 6 days or This 1 week. platelet count is just 1 week back. Yes, ma'am. So this has decreased. Yes, ma'am. Is it related with the present scenario or not? No, ma'am, I don't think so. क्या ये भी पोस्ट ट्रांसफ्यूजन इसका इसकी है जी प्लेटलेट काउंट है? नहीं डॉक्टर, पोस्ट जो है उसका वो पहले 88 था, फिर एक हफ्ते के बाद इसका 98 हो गया। 98 हो गया। वो तो जी सारे ट्रांसफ्यूजन, अगर फ्रेश ट्रांसफ्यूजन मिली है तो वो उसका वो हाँ हो गया होगा। जी मैम। सो टू लेबल इट एज जेस्टेशनल, जी मैम, आपके पास क्या क्राइटेरिया होगा? बिकॉज एक माय तो पेशेंट इज पहले लेवल इसके ठीक थे, जी पहले मैम। लेवल इसके ठीक थे अकॉर्डिंग एज टोल्ड बाय द पेशेंट। दैट आपके पास रिपोर्ट उसकी नहीं है, तो एज टोल्ड बाय द पेशेंट प्लेटलेट ठीक थे, क्योंकि पेशेंट अगर इतनी विजिलेंट और उसको पता है कि मेरे प्लेटलेट अब कम है तो वो सही इंफॉर्मेशन आपको दे रही होगी। जी एक मैम। तो ये चीज। सेकेंडली उसमें कोई और ऐसा हिस्ट्री पे सिग्निफिकेंट पॉइंट नहीं है पिछली प्रेगनेंसी में जी ना मैम। इस प्रेगनेंसी में। ठीक है, जी मैम। तो ये जी दो मैम। चीजें कॉमनली जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ही हम इसको ज्यादातर लेबल करते हैं until and unless proved otherwise, क्योंकि ये तो बाद में जैसे जैसे ये रिस्टोर होंगे हमें पता चलता जाएगा कि इसमें, क्योंकि इसको डेफिनेटली हमने रिपीट तो करना है। यस मैम। और कितने टाइम के बाद ये प्लेटलेट को रिपीट करना चाहिए? मैम, क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 3 to 5 डेज है, तो हम लोग एज 1 वीक के बाद करा लें तो वो ज्यादा अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल, इसको 1 वीक के बाद करवाओगे। और दूसरी चीज ये कि इसको जो है वो फिर उसके बाद ही हम इस पे कुछ कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज इफ इट इज जेस्टेशनल तो जेस्टेशनल में उतना नंबर ऑफ प्लेटलेट ड्रास्टिकली डिक्रीज नहीं करता। ठीक है, जी जितना कि इम्यून में करता है या ड्यू टू अदर क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जो है वो कर रहा होता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन की भी उसमें ऐसी हिस्ट्री नहीं है। जी तो मैम। इसलिए इसकी ये जस्टिफिकेशन होगी। नाउ कमिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट। ठीक है, जी मैम। अब जी मैम। इसमें जो अल्ट्रासाउंड मैनेजमेंट से पहले हम अल्ट्रासाउंड का डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, बिकॉज दैट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। जी मैम। Now, as per your abdominal examination, her symphysiofundal height is 27 centimeter.
while जी her duration of pregnancy is 36 plus weeks. How you will explain this? Because apparently and clinically you say that Liker is adequate and the estimated fetal weight is 1.5 to 1.7 kg approximately. अगर क्लिनिकली जब आप एस्टिमेट करते होते हो तो उसमें तकरीबन 0.5 kg का डिफरेंस आ जाता है. But do you think 1.5 to 1.7 kg is appropriate for 27 centimeter fundal height या 20? उसके हिसाब से तो फिर 27 weeks का बनता है. जी मैम. तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? Ma'am, maybe my patient is not for the sure of the date, mistaken dates हो जिसकी वजह से इसका जो height of fundus और इसमें disturbance आ रही है, then I will go for the early ultrasound for the confirmation. And also the height of the fundus sensitivity is only 30%. So I confirm my examination on the early scan. अर्ली स्कैन अगर अवेलेबल ना हो तो फिर क्या करोगे? क्योंकि अर्ली स्कैन देखो, अगर डेटिंग स्कैन अवेलेबल हो तो फिर तो जिंदगी ही आसान हो जाती है. फिर तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं मेहनत नहीं करनी पड़ती उसमें. तो लेकिन ये है कि इसमें अब फर्स्ट किया अर्ली स्कैन अवेलेबल नहीं है. वैसे इसका था कि नहीं था? मैम इसका था 16 वीक्स का. अच्छा चलो ठीक है, वो तो अच्छा हो गया. फिर 16 वीक्स के हिसाब से फिर कितनी इसकी बनती है ड्यूरेशन? 32 plus 4. 32 plus 4. जी ठीक मैम. है. सो 32 plus 4 हो गई. ठीक है. अब ये भी आपको ये पता होना चाहिए कि अर्ली डेटिंग स्कैन अगर अवेलेबल ना हो तो उस सूरत में आपने जो है वो इसको भी आपको जस्टिफिकेशन आनी चाहिए कि अगर इतना ग्रॉस डिफरेंस है तो इतना ग्रॉस डिफरेंस लाइकर एडिक्वेट के साथ एक्सप्लेनेबल नहीं है. Not even for symmetrically growth restricted, not even for the constitutionally small. So even in that case, you will base this discrepancy on mistaken dates. क्योंकि इसमें लाइकर आपने एडिक्वेट बता दिया, क्लिनिकली लाइकर एडिक्वेट का भी फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपने कैसे असेस किया कि लाइकर एडिक्वेट है. उसमें इजीली पैल्पेबल फीटल पार्ट्स होते हैं. जी मैम. जी मैम. जी. तो इसलिए जो है वो इसको उसको उस सूरत में भी आप उसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे. बट नाउ एज वी नो द अर्ली स्कैन एंड बाय दैट ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज 32 plus 4 weeks. तो अब इस डिस्क्रिपेंसी को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? अब आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आ गई. Madam, I want to know the recent ultrasound, and in the recent ultrasound, I know the AC and the estimate fetal weight. If it is a less than the 10th centile, then I will go for the Doppler ultrasound. वो तो अल्ट्रासाउंड की बात तो बाद में आती है ना. पहले तो आपकी क्लिनिकल असेसमेंट पे बात होती है कि क्लिनिकली आपने ये देखा कि सिम्प्लिसिटी फंडल हाइट इज 27 सेंटीमीटर एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय अर्ली स्कैन 32 plus 4 weeks है. तो इसकी क्या वजह है? पहले तो आपको ये वजह क्लिनिकल वजह बतानी पड़ेगी. बाद में अल्ट्रासाउंड पे तो फिर बहुत सारी चीजें कंफर्म हो जाती हैं. Ma'am, because my patient is her malnutrition, and malnutrition is the one cause of the IUG, small for the gestational age, and throughout my patient didn't take any proper diet. So it is the main one cause of the small for the gestational age. Also, ma'am, in my patient, she history of the previous history of the low birth weight in her baby. So that's why I'm thinking about that. And also she's chronic anemia that may causes the IGR. So these main things that is shows to the goes for the small for the gestational age. And her height and BMI is also 15 kg per meter square, and her build is also, she's a thin and lean patient. So these factors goes to indicate there is a small for the gestational age. Maybe it is a constitutional delay of the IUGR. And that is the confirm on the ultrasound. ठीक है. अब इसमें यही इसकी ज्यादा जस्टिफिकेशन इसकी यही होगी क्योंकि इसमें क्रॉनिक malnutrition at least in this pregnancy due to severe vomiting persisting right from the conception time period, वो है जिसमें न्यूट्रिएंट सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, एवरीथिंग इज डिस्टर्ब. और न्यूट्रिएंट सप्लाई जब डिस्टर्ब होगा तो ग्रोथ पोटेंशियल बेबी का नीचे चला जाता है. ठीक है. तो ये उसमें ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंट वजह होगी. फिर प्रीवियस हिस्ट्री, फिर उसका अपना ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड मतलब उसकी जो बर्थ है वो वाली, ये सारी चीजें जो हैं वो फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल एंड एज अ रिजल्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन उसको बहुत स्ट्रांगली फिर फेवर करती हैं. ठीक है.
तो ये उसमें उसकी वजह होगी। नाउ कमिंग टू द अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड में आप क्या क्या देखोगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अल्ट्रासाउंड पे? Madam, I want to know about the Leica volume and also the biometry. In the biometry, there is a AC and the estimate fetal weight, abdomen circumference and the estimate fetal weight. And ठीक है, also the bioparental diameter and femur length and placental localization. There is a lie and the presenting part and fetal heart sound. ठीक है। And अब इसके जो बाकी अब सारे टेस्ट थे उनको हम एक दफा देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन इसकी 7.6 हो गई, अब प्लेटलेट काउंट इसके 9.8 है, और बाकी में अगर कोई पॉजिटिव था बाकी सारे टेस्टों में तो वो भी आप हमें बता दें। इसके आरबीसीज इंडिसेस ठीक थे, फिर फेरिटिन कैसा था? मैम फेरिटिन नहीं हुआ था इसका। अच्छा, फेरिटिन नहीं हुआ, ठीक है। जी और ये बाकी आरएफटीज भी इसके ठीक थे, इलेक्ट्रोलाइट भी ठीक थे, ऐसा ही है? जी मैम वो ठीक थे, मतलब सारे टेस्ट जो हैं वो ऑलमोस्ट ठीक हैं, सिवाय इसके कि प्लेटलेट काउंट कम है और हीमोग्लोबिन कम है। जी मैम। एम आई ट्रू? ठीक है। अब हमें अल्ट्रासाउंड की आप फाइंडिंग्स बता दें। मैम अल्ट्रासाउंड में इसका लाइकर एडिक्वेट था। इसका जो रीसेंट अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें जो है ये 27 वीक्स इसका शो हो रहा था और लाइकर एडिक्वेट ही आ रहा था इसमें, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ था डॉक्टर कि क्या है। और इस जी मैम बस यही 2 लिखे हुए थे ना, उसमें उन्होंने वो दिया हुआ था, बस एक छोटा सा लिखा हुआ था। तो इसने कहा कि मेरा रिपीट होना है और कल मैं जाऊंगी ये जीपीएमसी जब आई, क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ सही हुई है। आपको इम्तिहान में अक्सर ऐसे ही अल्ट्रासाउंड मिलेंगे जिसमें पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो उस सूरत में फिर आपने इसी पे रिलाई करना है। लेकिन आप जब आप खुद अगर इसमें करोगे, एडवाइस करोगे अल्ट्रासाउंड, तो उस पे एक तो आपने बायोमेट्री का कहा, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, एस्टिमेटेड फीटल वेट, अमाउंट ऑफ लाइकर, प्लेसेंटल लोकलाइजेशन, और कुछ आप इसमें करवाना चाहोगे? मैम और एएफआई में मैम मैं देखूंगी लाइकर वॉल्यूम में जो है ना, मैं डीपेस्ट वर्टिकल पोल और जो है एएफआई में देखना चाहूंगी। एएफआई तो हो गया ना, वो तो आपने वो तो मेंशन कर दिया इसके ना। बाद भी तो मैं डिसाइड कर जी, इस पे ही मैं डिसाइड करूंगी कि मैंने डॉक्टर करवाना है या नहीं करवाना है। लेकिन बेस टाइम मुझे एक डॉक्टर कराना पड़ेगा क्योंकि इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है, तो आई विल गो फॉर द अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर। अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर आप करवाओ जी मैम। अब सपोज अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर ठीक आ गया, बाकी पैरामीटर्स आपको पता है, 27 वीक्स की बायोमेट्री है, और एग्जाम में आपको कैलकुलेशन, एक मैं जरा जरूरी फोन सुन लो। जी मैम। हेलो, जी जी मैम। हाँ जी, तो अब इसमें लाइकर एडिक्वेट हो गया, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर भी ठीक है, 27 वीक्स के इसके फीटल बायोमेट्री आ रही है। अब आपकी मैनेजमेंट मुझे जरा बता दीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट कंसिडरिंग ऑल हर इश्यूज, क्योंकि जो मैनेजमेंट होती है ना, अब देखो इसमें मल्टीपल इश्यूज हैं, तो इन मल्टीपल इश्यूज की मैनेजमेंट को आपने कैसे एड्रेस करना है वो भी इसमें आपको पता होना चाहिए। जी मैम। जी okay ma'am, I will consult the patient regarding to the diagnosis that she is having having a multiple problems in the chronic anemia, also gestational thrombocytopenia and small for the gestational age, and ma'am I will also involve the I will also consult about the fetal maternal risk, and involve the multidisciplinary team. In the multidisciplinary team, I have involved the senior obstetrician, pediatrician, anesthetic, and also hematologist and a radiologist in this patient. And my aim of the management to optimize her hemoglobin, to replenish her iron, and also to prevent her complication. Also, my patient has a small for gestational age baby. So I will. My aim is that to prevent the complication and give the best outcome. So I will do the fetal maternal surveillance. In the fetal surveillance, because my patient is small for the gestational age, but her doctor is a normal, then I will go for the daily kick chart and give the steroid cover, daily kick chart,
CTG, and ma'am I will do her ultrasound because all parameters are normal, so I will do देखो her. एक मिनट, इस जी वक्त मैम। जो उसके करंट इश्यूज है ना वो है टू कंट्रोल द वॉमिटिंग एंड यस टू मैम। ऑप्टिमाइज हर हीमोग्लोबिन। ठीक है, जी स्मॉल मैम। फॉर जी मैम। जेस्टेशनल एज में हमें अभी तक कोई बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर नजर नहीं आया, तो ठीक है इस मैम। वजह से ये एक लॉन्ग टर्म फॉलो अप है उसका। जी तो मैम। लॉन्ग टर्म फॉलो अप को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस वक्त ओके जो मैम। उसके करंट इश्यूज हैं रिगार्डिंग वॉमिटिंग, जो उसका परसिस्ट कर रहे थ्रू आउट प्रेगनेंसी, आप उसके लिए क्या करोगे, हीमोग्लोबिन को मैडम ऑप्टिमाइज जी कैसे करोगे, बिकॉज जी। हर हीमोग्लोबिन नाउ टुडे इज 7.6। Yes, ma'am. I Still will. that is Ji, ma'am. I will. First of all, I will optimize her hemoglobin because her hemoglobin is a 7.6 after the one transfusion, and my patient is at in a early skin 32 plus 4 weeks. So I will give the parental IV, and I will calculate her parental IV iron by the Genzoni formula, and then I will give the more. पैरेंटल आयरन जब आप दोगे तो इस Ji, ma'am. वॉमिटिंग वाले फेज में will that be a good option? Ma'am, because the अभी parental are. I think still she is in vomiting phase, No, madam, now it's or a she subtle. settled. It's a subtle because they receive some hydration and also the injection. Then vomiting is settled now from 2 days. Hmm. वो ठीक है, अभी सही थी and she डॉक्टर। is taking oral diet and all या other things and she is tolerating it. यस मैम, सब कुछ वो ले रही थी, खाना पीना कह रही थी कि मुझे अभी कोई ऐसा सच नहीं है, बिकॉज शी इज ऑलरेडी ऑन द टैबलेट एनविप, और Hmm. 2 BT जो है वो उसको उन्होंने दिया था कि खाने से पहले लेनी है आपने, बस ये ठीक है, चीज हुई थी डॉक्टर। ठीक और है, देन आई ठीक विल है, give her the parental because my patient is a tolerant and there is also the ठीक parental है। I have a lot of time, so I will go for the 3 doses of the parental iron, But and considering that her peripheral smear is okay and RBCs indices are okay, serum ferritin has not yet been done. तो yes क्या ma'am. आप उसकी रिपोर्ट का इंतजार नहीं करोगे बिफोर गिविंग हर यस मैम। पैरेंटल आयरन? जी मैम। जी जरूर मैम। पहले मैं देखूंगी कि इफ देयर इज अ डिक्रीज फेरेटिन देन आई विल गो आयरन। उस पे बेस करो पहले, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है तो मैम। उस पे सारा आपने बेस करना है, और क्योंकि उसमें आप इसको रैंडमली इस तरह से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इसको मैं पेरेंटल आयरन दूंगी। ठीक है मैम। इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने कभी नहीं की, पिछली प्रेगनेंसी में भी इसको 2 ब्लड लगे तब भी इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं हुई। हो सकता है इसके सीरम फेरिटिन ऑलरेडी आर ऑन हायर साइड, इस यस वक्त मैम। इसको इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं है। तो अगर सीरम फेरिटिन आर ऑलरेडी ऑन हायर साइड तो फिर आप पेरेंटल आयरन देते हुए सोचोगे Yes, इसे। ma'am, because there is a chance of the thalassemia, so then I will decide on the ferritin level. क्योंकि फिर मैं अगर वो थैलेसीमिया में है तो आई विल नॉट गिव द पेरेंटल आयरन, देन आई विल गो फॉर द इसको ब्लड उस पे ट्रांसफ्यूजन। बेस करो, ठीक है? और जी मैम। मैम देन आई विल मैम, तो अभी मैं इसको फेरेटिन को लो लेके चलूं या मतलब देखो इसमें तो जो है वो आप अगर फर्ज किया आपको फेरिटिन नहीं हुआ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका एक टेस्ट नहीं हुआ होता, तो जी फिर मैम। आप पेशेंट की फेरिटिन के डिफरेंट लेवल के हिसाब से करो। तो ठीक है मैम। इसलिए कि अगर ये कहो कि आई विल डिसाइड गिविंग पेरेंटल आयरन ऑन द बेसिस ऑफ फेरिटिन लेवल्स, if these are normal then I will wait, because in that case she could very much be a case of thalassemia. जी मैम। और अगर ये reduced है then I will go for the parental iron after calculation of the total dose. ठीक है मैम। ठीक है, फिर इसको इस ठीक है तरह मैम। से खुद से करो, क्योंकि बाद दफा एग्जामिनर कह देता है कि अच्छा सपोज फेरिटिन लेवल इसके लो आ गए या सपोज फेरिटिन लेवल इसके नॉर्मल आ गए, तो आपने आयरन ओवरडोज तो नहीं करना। नो मैम। आयरन ओवरडोज में भी वोमिटिंग प्रेसिपिटेट हो सकती है, जी तो इसलिए फिर आप इसको आयरन ओवरडोज नहीं करोगे, फिर उसके ऊपर बेस करोगे आप, ठीक है? ठीक है मैम। And then, ma'am, I also deworm my patient, and also I'm vigilant deworm my patient and vigilant about the symptom of the anemia, and I do her abdomen examination. Also, there is a physical examination. I will check her all physical examination during the admission, and for the vomiting, I will. My patient is now her vomiting is controlled, but if there is any vomiting is occurred, then I will give the antiemetic and dehydrate the patient. And मैम if everything is okay, मैम फिर इसमें मैं स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज को भी ले आऊं फॉर द फीटल सर्विलेंस। हाँ, देखो पहले आपने उसके एक्यूट प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, क्योंकि अगर ठीक उसको है मैम। मैनेज किए बगैर आप सीधा
जिस STA पे चले गए, तो इसका मतलब है कि आपको उसकी सिग्निफिकेंस का पता ही नहीं है, आपने उसको इग्नोर कर दिया, उसके वॉमिटिंग के प्रॉब्लम को, हीमोग्लोबिन के प्रॉब्लम को, विच मे बी अ कॉज फॉर दिस स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। जी मैम। तो पहले आप उनको करेक्ट करो, फिर स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज की तरफ आओ। जी मैम। ठीक है, अब हम आते हैं, ये आपने इसको कर दिया, वॉमिटिंग ठीक होगी, अब हम आते हैं स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज के लिए। Yes, ma'am. As a small fetal surveillance, ये जो पेशेंट होते हैं ना, जो क्रॉनिकली मेल नरिश्ड होते हैं, और जैसे इसमें वॉमिटिंग भी है, इसमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं पेशेंट में। एक चीज होती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के, पेशेंट जो आम रोटी चावल खाता है या वो सारी चीजें। एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी आ जाते हैं। तो वॉमिटिंग में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी उसमें डेफिशिएंसी हो सकती है। और ये दूसरी जैसे विटामिन B12, ये सब चीजें जो हैं, ये उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी वॉमिटिंग हो सकती है, और वॉमिटिंग उसकी डेफिशिएंसी कर भी सकती है। Yes, ma'am. That's why I am elaborating my You will focus on micronutrients also. ठीक है मैम। ये जो है, ये विटामिन्स खासतौर पे जो B कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन वाले होते हैं, these are very much affected by vomiting. Yes, ma'am. That's why इनकी डेफिशिएंसी की वजह से वॉमिटिंग भी हो सकती है। Yes, ma'am. इसलिए हम इनकी सप्लीमेंटेशन पे भी फोकस कर रहे होते हैं। Ma'am, yes, and I also asked in my history for this point that my patient is take the meat twice a weekly. तो वो आपने देखो, आप लोगों ने अपने हॉस्पिटल के पेपर फाइल्स पे भी देखा होगा, वेरी मच स्ट्रेस इज अपॉन द पेशेंट्स न्यूट्रिशन, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है बहुत सारे आगे प्रॉब्लम्स का, इवन द पेरीनेटल, इंक्रीजिंग द पेरीनेटल मोर्टेलिटी, increasing the chances of prematurity, increasing the chances of gestational small for gestational age babies and the low birth weight babies, and increasing the chances of many nutritional deficiency like iron है और folic acid है, even vitamin B12, ये सारी चीजें जो आगे एनीमिया की तरफ भी ले जाती हैं। तो ये सारी चीजों के चांसेस जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन के नतीजे में हो सकते हैं। एंड शी क्लियरली लुक्स टू बी मेल नरिश्ड बेस्ड ऑन हर BMI as well as on her clinical condition. जी मैम। तो ये इस पे आपने बहुत इम्पोर्टेंट इस पे फोकस करना है। ठीक है मैम। चलो जी, आगे हम अब स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज पे आते हैं। ठीक है जी मैम। हमने सिनेरियो ये बनाया था कि इसमें अपेरेंटली डॉप्लर फ्लो भी ठीक है और 27 वीक्स के मार्कर्स हैं और बाकी लाइक रेडिकेट है। जी मैम। Ma'am, yes, ma'am. For this, my patient has also the small for the gestation age, and I will go for the early scan, and that is shows the 32 plus 4 days. So, ma'am, I will do the fetal surveillance, and for the fetal surveillance, I will do the give the steroid cover, kick chart, CTG, and also her ultrasound. For the AC and the estimate fetal weight, I will do every 2 weekly because all parameters are normal. And also I will do her Doppler 2 weekly, and also ma'am modified biophysical profile, and in this that I will look for the Likert volume also 2 weekly, and the CTG on the alternate days, and then everything is okay. And आप क्या करवाओगे CTG on alternate days? नहीं सॉरी मैम, CTG भी वीकली कराऊंगी मैं, सॉरी, क्योंकि नॉर्मल है सारे पैरामीटर्स इसके। I will give the kick chart. CTG का आपने क्या बताया? मैम उसका वीकली करूंगी CTG। उसकी मूवमेंट तो ठीक है प्रोबेबली? हाँ जी मैम, मूवमेंट तो ठीक है। I will give the kick chart. जी तो मैम। वो किक चार्ट तो आप दोगे as long as she is in hospital? जी मैम। क्योंकि मेरा ख्याल है आपका बहुत लंबा इरादा तो नहीं है इसको एडमिट रखने का। नहीं मैम। ठीक है, तो ठीक है, as long as she is in hospital you can maintain the fetal kick chart। लेकिन उसके बाद उसके CTG करवाने की इसमें है कोई जरूरत? मैम गाइडलाइन ये कह रहा है कि आप एक दफा करवा लो अगर वो एडमिट है आपके पास तो। मैम शी इज राइट नाउ 27 वीक्स। हाँ, बाय डेट शी इज 32 वीक्स। नहीं, बाय डेट इसमें डिलेड ग्रोथ है, रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है, व्हिच वेरी मच सीम्स टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल इन व्यू ऑफ द प्रीवियस हिस्ट्री। और उसका जो सारा जो है वो सारे का सारा इसका कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल की तरफ जा रहा है। कोई इसमें क्रॉनिक हाइपोक्सिया या वो वाला एलिमेंट नहीं लगता सो फार।
तो इसमें अब जो फीटल सर्वेलेंस के जो मार्कर्स हैं, जैसे आपने फीटल ग्रोथ चार्ट, आई एग्री विद दैट, स्टीरॉयड कवर देना बनता है इसका, क्योंकि जो पेशेंट इतने एक्सेसिव वॉमिटिंग के साथ जो आती रही, मेल न्यूट्रिशन है, प्री टर्म लेबर के चांसेस हैं, एनीमिया के साथ भी प्री टर्म लेबर के चांसेस होते हैं, तो इसमें स्टीरॉयड देना है आपने। और सीटीजी एडमिट है तो आप एक दफा कर लो, उसमें कोई मसला नहीं है, फीटल किक चार्ट तो आपने मेंटेन किया ही हुआ है। लेकिन व्हाट व्हेन शी इज डिस्चार्ज, उसके बाद तो इसमें जरूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर रिपीटिंग द फीटल ग्रोथ चार्ट। अब ये जो फीटल ग्रोथ चार्ट होते हैं ना, ये बेसिकली हमारी कंट्री में भी इवन कस्टमाइज्ड फीटल ग्रोथ चार्ट आर अवेलेबल। यस मैम। इसलिए कि फीटल ग्रोथ चार्ट वेरीज फ्रॉम पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन। इनका जो ग्रोथ कब होता है वो पॉपुलेशन पे, एथनिसिटी पे, न्यूट्रिशनल स्टेटस पे, और हमारी न्यूट्रिशनल स्टेटस और यूके की न्यूट्रिशनल स्टेटस में बहुत फर्क है। तो इसलिए कस्टमाइज्ड फीटल ग्रोथ चार्ट जो हैं वो आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो इसलिए, क्योंकि अगर आप वैसे बने बनाए जो वेस्ट के ग्रोथ चार्ट्स हैं अगर उस पर करो तो फिर तो ये बहुत नीचे चले जाते हैं। तो इसलिए इसमें वही यूज करो। कम से कम 2 हफ्ते बाद, 2 से 3 हफ्ते बाद, वैसे इसका 3 हफ्ते तो इसका आइडियल टाइम होता है, लेकिन इस केस में चूंकि डिस्क्रिपेंसी बहुत ज्यादा है, सो रिपीट इट आफ्टर 2 वीक्स। और इसमें क्या कराने की जरूरत है? मैम अल्ट्रासाउंड, AC and the AFI I will check after the 2 weeks। वो तो सारा कुछ आपने करवा लिया ना, वो तो फीटल ग्रोथ चार्ट जब आप करोगे उसमें सारी चीजें शामिल हो जाएंगी। जी मैम। और ये डॉपलर फ्लो भी इसमें आप करवाओगे कि कहीं इस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह, ज़ाहिर उसमें देखो यहाँ पे आ जाता है ना ये एनीमिया वाली चीज। अब अगर ये हम कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल की बात कर रहे हैं जिसमें डॉपलर फ्लो इतने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि एंडोजिनस जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है बच्चे का वही कम होता है, इवन समटाइम्स विदाउट हैविंग एनी कंजेनिटल एबनॉर्मैलिटीज। तो इसलिए जो है इसमें आप डॉपलर फ्लो इसलिए कराओगे कि पेशेंट अनीमिक रही। अनीमिया जब पेशेंट को होता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड, तो उसमें ऑक्सीजन डिलीवरी थ्रू प्लेसेंटा टू द बेबी इज आल्सो रिड्यूस्ड। ठीक है। अगरचे इसकी दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट वजह वेस्कुलोपैथी होती है। वेस्कुलोपैथी हो तो उसमें तो डॉपलर फ्लो डेफिनेटली आर डिस्टर्ब, और अगर वेस्कुलोपैथी ना भी हो तो न्यूट्रिशनल एलिमेंट, ये सारी चीजें हैं वो भी उसका बेबी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो रिड्यूस साइड पे ले आते हैं। तो लेकिन डॉपलर फ्लो टू बी ऑन सेफर साइड, हैविंग इट ऑन व्हेनेवर यू आर हैविंग फीटल ग्रोथ चार्ट, तो उस वक्त उसका कर देने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि अगर कोई ऐसा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के साथ बाद दफा प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी भी लिंक्ड होती है, मे बी लेटर इन जेस्टेशन she develops an element of reduced Doppler flow। तो इसलिए वो फिर उसको पिक करने के लिए हम इसको आफ्टर एवरी 2 वीक्स हम इसके डॉपलर फ्लो करा सकते हैं, प्रोवाइडेड द बेसलाइन डॉपलर फ्लो इज ओके। अगर ये बेसलाइन डॉपलर फ्लो अगर डिस्टर्ब्ड आएगा तो डेफिनेटली इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी फिर डॉपलर फ्लो कराने की। तो इसलिए इसको फिर आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इज मस्ट। एक्सप्लेनेशन आपने डॉपलर फ्लो क्यों कराया, एमनियोटिक फ्लूइड क्यों कराया, बायोफिजिकल प्रोफाइल क्यों कराया, इस हर क्यों का जवाब आपको आना चाहिए। जी मैम। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को फिर पता चलता है कि एटलीस्ट यू नो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टेस्ट व्हिच यू आर गोइंग टू डू इन दिस पेशेंट। आपको हर चीज का पता है, ये नहीं है कि आप रैंडमली बस सिर्फ बुकिश नॉलेज के ऊपर आप इसको बेस कर रहे हो। सही मैम। ठीक है, फिर क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव पता होगा तो आप उसको इंटरप्रेट भी कर सकते हो जी। क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन और उसके ऊपर बेस करना डिसीजन को, वो भी सारी चीजें फिर आप कर सकते हो। अब इसमें डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं कि ये सारा कुछ, अब हीमोग्लोबिन आपकी इसने आपने इसकी कब रिपीट करनी है मैम? आफ्टर 2 to 3 weeks। प्लेटलेट का फॉलोअप भी जरूरी होगा जी मैम। आई विल रिपीट इट आफ्टर द 2 to 3 weeks hemoglobin and also मैं साथ ही डॉक्टर इंजेक्टेबल आयरन दे दिए तो आपने 2 वीक्स के बाद रिपीट कर दी। जी मैम। प्लेटलेट का क्या करोगे? प्लेटलेट को आपने 1 हफ्ते बाद रिपीट किया। ठीक है, अब प्लेटलेट से रिलेटेड भी डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं। अब सारी चीजें ये कि वाइवा में तो नहीं कवर होती, हम तो यहाँ पे जो बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं हम उसका हर इशू डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन एग्जाम में कोई भी एक इशू पकड़ के आपने नहीं छोड़ना, कोई भी इशू अपनी डिस्कशन और अपनी मैनेजमेंट से, यानी जब आपसे इसकी मैनेजमेंट पूछी जाएगी तो स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्यूट प्रॉब्लम,
जो उसके शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं, वहां से स्टार्ट करके फिर आपने लॉन्ग टर्म फॉलोअप मॉनिटरिंग पे लेके आना है। और उसमें से फिर बाद दफा एग्जामिनर अपनी मर्जी का कोई टॉपिक चूज करके या जो क्लिनिकली बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक है वो चूज करके आपसे पूछना शुरू हो जाता है कि सपोज ये ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन फीटस जो है, इसमें बेसलाइन डॉपलर फ्लो ही रेस्ट आ गए, तो अब इसमें क्या करोगे? तो इसमें डायरेक्शंस बहुत सारी हैं। इसको तो हमने सिंपल सिनेरियो बनाया था ना कि जिसमें डॉपलर फ्लो सब कुछ ठीक आ गया। जी मैम। लेकिन सपोज या ऐसे भी हो सकता है कि फॉलो अप में ही कहीं 2 हफ्ते के बाद जो आपने अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें डॉपलर फ्लो रेस्ट आ गया, तो फिर आप क्या करोगे? तो उस फिर का जवाब भी आपको आना चाहिए। जी ma'am, it is a depend on the end diastolic blood flow, and also there is a, if there is a more than the 2 deviation, there is a flow is a reduced or absent and the reverse, then my management is a depend on that कि अगर उसमें जो ब्लड फ्लो आएगा तो फिर मेरी मैनेजमेंट उसी तरीके से डिपेंड करेगी और मेरी इन्वेस्टिगेशन भी होगी उसी तरीके से। अगर उसका जो है प्रेजेंट है लेकिन रिड्यूस है, देन आई विल गो फॉर द 2 वीकली अल्ट्रासाउंड and also the Doppler ultrasound in a week 2 time a Doppler ultrasound and the weekly AC and the estimate feature weight I will check it, and also the Leica volume and the CTG daily I do the CTG and the Leica volume, and I will deliver the baby at the 37 weeks. और मैम अगर मेरा 37 वीक्स पे देखो, अगर 37 वीक्स पे फिर डिलीवरी के लिए आप उससे भी पहले कर सकते हो अगर कोई ऐसी सिचुएशन। जी मैम, हाँ मैम, अगर मेरे पास एब्सेंट और रिवर्स आ गया तो मैम फिर मैं उसको जो है इमीडिएटली करूंगी, बिकॉज इन एब्सेंट देयर इज अ चांस ऑफ द हाइपोक्सिया इज 80%, and also there is a perinatal mortality is about the 10%, and if madam it is a reverse there a hypoxia रिवर्स में तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता ना। अलबत्ता एब्सेंट पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज हैं। जी मैम। एब्सेंट का फिर आप बेस करोगे ऑन द जेस्टेशनल एज एट व्हिच इट इज डायग्नोस्ड। सपोज इट्स वेरी प्री टर्म, लाइक वेरी प्री टर्म वाली कैटेगरी में तो नहीं आएगा। 34 वीक्स पे अगर फर्ज किया गया हो जाता है एब्सेंट, then how you will proceed for that? Would you like to deliver the baby already which is growth restricted at 34 weeks? उसमें तो फिर growth restriction और prematurity दोनों की complication ऐड हो जाएंगी। So before delivering a growth restricted baby prematurely, आपने इस absent flow को further evaluate करना है by what method? By madam middle cerebral artery. अच्छा, और जी मैम, जी मैम, और मैम इसका जो है उसमें मैं डिसाइड करूंगी कि अगर एब्सेंट आ गया तो मैं इसको स्टीरॉइड कवर दूंगी और लाइकर कवर तो आपने अभी दे दिया ना उसको, क्योंकि हमें नहीं पता किस वक्त हमें इंटरवीन करना पड़े इसमें। अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे, बट वी डोंट नो कि हमें नेक्स्ट इसको कब करना पड़े। तो फिर आप मिडल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो इसमें करवाओगे। जी मैम। मिडल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो क्या नॉर्मली इंक्रीज हो सकता है? नहीं मैम, व्हेन देयर इज अ ब्रेन स्प्रिंग इफेक्ट देन इट इज जो है वो हमें एबनॉर्मल मिलेगा, क्योंकि अगर जब वो फीटल हाइपोक्सिया होगा बेबी को और तो मैम फिर हमें जो है उसका जो होता है हम लोग सेरिब्रो प्लेसेंटल रेशियो देखते हैं, फिर वो एबनॉर्मल आ जाता है। सेरिब्रल आर्टरी जैसे देखो जो अम्बिलिकल आर्टरी फ्लो है उसमें जेस्टेशन वाइज चेंजेस आती हैं, ये तो पता है ना? जी मैम, जेस्टेशन वाइज चेंजेस आती हैं और उसकी वजह से जो एसटी रेशियो होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 4, सेकंड ट्राइमेस्टर में 3 और थर्ड ट्राइमेस्टर में 2 है ऑन एवरेज। जी मैम। इसी तरह से जो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो है इसमें भी चेंजेस आती हैं जेस्टेशन वाइज। और इसमें जो मिड टर्म वाला टाइम पीरियड है ये नॉर्मली इट टेंड्स टू इंक्रीज, यानी तकरीबन एट अराउंड 30-32 वीक्स के टाइम पीरियड पे। यही वजह है कि मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं होता इन दिस टाइम पीरियड। उसके बाद 32 वीक्स के बाद इट ग्रेजुअली नॉर्मलाइजेस मीन कि अगर बाकी डॉपलर फ्लो ठीक है, कोई ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट नहीं है, तो फिर ये ठीक रहेगा, नॉर्मल ये होगा। और उसके बाद जो इसका इंक्रीज होना है दैट कैन इंडिकेट द हाइपोक्सिक इंसल्ट टू द बेबी, जिसमें ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट हो जाता है कि वाइटल ऑर्गन को ब्लड शिफ्ट हो जाता है। तो लेकिन इसी वजह से अगर ये एट अराउंड 30 या 32 वीक्स अगर ये हो तो फिर उसमें वेनस ज्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं एज कंपेयर टू मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो।
और उसके बाद फिर मिडल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो की इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो ज्यादा होती है। जी मैम। ठीक है, यही जी इसकी बेसिकली इसकी यस वजह मैम। ये और मैम होती है। इसमें जी इसमें हम यही होता है कि अगर वो 32 से बिलो है तो हम डक्टस विनोसस कराते हैं, और वो अगर ऐसे में अगर वो हमारा सारा अम्बिलिकल आर्टरी डॉप्लर में एब्सेंट भी आ रहा है लेकिन हमारा डक्टस विनोसस सही आ रहा है तो फिर भी हम इसको 34 वीक्स तक ले जाएंगे। फिर भी और हम ले जाएंगे, चाहे वो एब्सेंट भी आ रहा है तो हम हमें एब्सेंट हाँ एंडोस्टोलिक फ्लो पे जी बहुत मैम। फौरी तौर पे डिलीवर करने की जरूरत नहीं है, नहीं अनलेस वी इवेलुएट इट जी फर्दर फर्दर और एट मैम फर्दर अगर डॉप्लर फ्लो स्टडीज। जी मैम। ठीक है, और मैम क्योंकि जी प्रीमेच्योरिटी कंबाइंड विद स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, क्योंकि जो बर्थ वेट है दैट इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ पेरिनेटल सर्वाइवल। तो बर्थ वेट जब इतना कम होगा तो कम से कम मतलब जो 2 kg तक का बर्थ वेट है उसकी सर्वाइवेबिलिटी और जो 2 kg से कम बच्चा है उसकी सर्वाइवेबिलिटी में बहुत फर्क है, अनलेस कि आपको एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन मिल जाए कि बस इस बच्चे को अब डिलीवर कराना ही कराना है। जी मैम। अदरवाइज ये जो ग्रे एरिया है ना एब्सेंट वाला, इसको फिर फर्दर आप एक्सप्लोर करें। जी मैम। ठीक है मैम। यस मैम। इसको जी फिर मैम। इस तरह से आपने करना है, प्रोवाइडेड के यू हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन। अगर सारा कुछ नॉर्मल चलता रहता है तो फिर तो आप जाहिर है इसको लेके जाओगे ही टर्म तक, 37 वीक्स जी मैम। फिर तो कम से कम। और अब और इसमें फिर आपका जो है वो साथ साथ प्लेटलेट वो चल रही है मैनेजमेंट। अब इसमें फर्ज किया वो पूछें कि 1 हफ्ते बाद आपने जब करवाया तो प्लेटलेट हो गए 70, तो ये तो बार बार कम हो रही है। जेस्टेशनल अगर हो, जो रैपिड डिक्लाइन होता है ना प्लेटलेट्स का, रैपिड डिक्लाइन बार जी बार मैम। जो हो रहा हो, वो मोमेंट जेस्टेशनल में नहीं हो रहा होता। यस मैम। जेस्टेशनल में अनलेस देयर इज सम इन्फेक्शन, मैटरनल Yes, इन्फेक्शन। I will rule out the maternal infection, and I will do the ma'am her TLC count, and also there is a if there is a raise, then I will go for the culture and the sensitivity. हाँ, मतलब फिर उसको अपने ऑन पे एवेलुएट करने की जी जरूरत है, क्योंकि फिर अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, क्योंकि हीमोग्लोबिन का तो चलो आपने ट्रीट कर लिया, ब्लड के साथ आपने लगा दिया या पेरेंटल आयरन जो भी आपने उसमें उस वक्त उसको बताया, तो लेकिन प्लेटलेट अगर ये ठीक चल रहे हैं बिटवीन 50 एंड 100 चल रहे हैं तो ठीक है, चलने जाए। वो उसमें कोई ऐसा क्लिनिकली तो वो कुछ कर भी नहीं रहे मसला, अगर वो मॉडरेट में आ जाते हैं। Yes, ma'am. लेकिन अगर 50 से नीचे चले जाएं तो डेफिनेटली उसको मैनेज करने की जरूरत है। लेकिन अगर 50 से नीचे जाएं या रैपिडली डिक्लाइन कर रहे हैं आफ्टर एज बाय योर वीकली असेसमेंट, तो फिर उसमें उसकी वजह कोई और है, इधर सम इन्फेक्शन और सम इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, यानी जो आईटीपी वगैरह वाली चीज होती है। जी मैम। तो इसलिए फिर उसको उसके उस तरह से एवेल्युएट करने की जरूरत है। और जो रैपिडली डिक्लाइन कर रही होती है उसमें फिर स्टीरॉयड, लो डोज स्टीरॉयड जी देने मैम। से भी वो प्रोसेस जी स्टॉप हो जाता है, इट क्योंकि इज द फर्स्ट लाइन। इतना रैपिड डिक्लाइन नहीं होता और बहुत सीवियर नहीं होता। जी मैम, लेकिन हम मुझे ये माइल्ड पूछना है। मॉडरेट है, ये जेस्टेशनल में करते हैं, लेकिन जेस्टेशनल में अमूमन ज्यादातर जो कैटेगरी है वो माइल्ड वाली कैटेगरी में ही आती है। जी मैम। हाँ जी, अच्छा। मैम इसमें मुझे एक चीज पूछनी थी कि हम जो स्टीरॉइड कवर देते हैं सॉरी वो हम उसी डोज के हिसाब से देंगे जैसे हम इसको नॉन प्रेग्नेंट में देते थे 12 टैबलेट्स, या हम इसमें कम देंगे? इसमें हम कम देंगे, क्योंकि कम देखो देंगे। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन ऑलरेडी आर ऑन द लोअर साइड, ठीक है, जी मैम। जी मैम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी। और इसमें हम प्रेडनिसोलोन दो देंगे हम, वो बेसिकली जो टेबलेट्स ही हम देते हैं, अगर फर्ज किया हमें जरूरत पड़े तो, जरूरत पड़ने पे ही हम देते हैं, ऐसे नहीं देते। जी तो मैम। फिर उसमें उससे रिलेटिवली लो डोज, कम से कम 5 मिलीग्राम की 2 डोजेस 8 to 6 आवर की, ओके मैम। इतनी इसकी। अगर वो एक्यूट फॉल है उसका, फिर डिपेंड करता है कि उसकी फॉल की स्पीड क्या है या ओके उसका मैम। एब्सोल्यूट लेवल क्या है, ठीक यस है। मैम। तो ठीक है मैम। उसमें फिर ये डिपेंड करेगा, लेकिन उसमें फिर डोज हम इस तरह से उसको करते हैं। और Ma'am, कम but से कम if it is the 3-4 platelet, घंटे जरूर जी देते ma'am, हैं। if the platelet count is lower than the 20, then madam we will go for the mega unit. वो तो फिर ज्यादा 20 से नीचे तो फिर तो स्पॉन्टेनियस, बल्कि 10 से नीचे स्पॉन्टेनियस ब्लीड का ज्यादा चांसेस होता है। जी तो मैम। इसलिए जो है वो फिर इसको हम जो है वो उसमें देंगे, प्लेटलेट फिर कंसंट्रेट देंगे या मेगा यूनिट देंगे, फिर ठीक है उसमें मैम। हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है ना। जी ठीक है मैम। यस मैम। चलो जी, अब इसमें और अब क्या रह गया ना, मोड ऑफ द डिलीवरी विल डेफिनेटली डिपेंड अपॉन द ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन एज यस वेल मैम। एज द फीटल स्टेटस एट दैट टाइम, ठीक यस है। मैम। और ये यस मैम। पहले नॉर्मल डिलीवरी हुई है और उसी Then I तरह will स्मॉल फॉर go. जेस्टेशन बेबी की हुई है, इसलिए
I don't think there will be any problem in delivering her vaginally unless कोई breach हो, malpresentation हो या कोई reverse endostolic flow हो, सिर्फ Yes. उस सूरत में. Otherwise, Yes, we can go for vaginal delivery in this case. ठीक है. yes, ma'am. और बाकी इसमें मेरा ख्याल है और तो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं रह गई. इसमें जो बाकी जो प्लेटलेट्स वाला फर्ज किया, अगर हमें इसमें स्टीरॉयड देने की जरूरत पड़ती भी है तो हम इसको पोस्ट पार्टम फिर उसका फॉलो अप भी करेंगे. Yes, ma'am. I will do the antiplatelet body. है या इम्यून है या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से है, तो उसको फिर हमने उस तरह से एवेलुएट करना. 6 weeks पर मैम मैं करूँगी इसको. और एनीमिया को फिर हम जो बात थी इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस हम जरूर करवाएंगे व्हेन एवर देयर इज इट इज फिजिबल. फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि फ्रेश ब्लड लगाने के फौरन बाद हम नहीं ये करते इलेक्ट्रोफोरेसिस एटलीस्ट फॉर 12 वीक्स आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन, इवन वन ट्रांसफ्यूजन. Okay, ma'am. इसको हम करेंगे उसके बाद. सो शी कैन बी स्क्रीन्ड आफ्टर द प्रेगनेंसी इज ओवर, क्योंकि इस वक्त हम उसको ट्रीट कर रहे हैं ब्लड से या पेरेंटल आयरन से. ठीक है मैम. जी मैम. इसमें इस तरह से होगा. फिर बर्थ स्पेसिंग इसमें चाहिए होगी, वो सारी चीजें. Third stage of the management and also post-operative care. In the post-natal care, I will ask the patient about the contraception, encourage the breastfeeding. Also, I will refresh her iron and मैम क्योंकि orally वो मैं इसको prescribe करूँगी and मैम then I will, if the patient is stable, then I will discharge the patient and also consent for the further future pregnancies. Then she should take the balanced diet during the after the pregnancy after the delivery. Also, I will counsel about that. ठीक है. इसमें जहाँ पे ये है वॉमिटिंग वाला फेज है, अगर ये परसिस्ट करता है बाद में भी तो फिर किसी ना किसी फूड एलर्जी को भी जरूर वो करो. जैसे ग्लूटेन एलर्जी होती है, इसमें जैसे वीट एलर्जी होती है, तो ये सारी चीजें भी इसकी फिर हमें, और क्रॉनिक एपीडी या गैस्ट्राइटिस ये वाली चीजें भी होती हैं, तो ये सारी चीजों को भी फिर हमें इसमें करना पड़ेगा, स्क्रीन करना पड़ेगा. एंड इन सम केसेस इवन एंडोस्कोपी इज रिक्वायर्ड टू नो द लोकल कॉज फॉर इट. ठीक है. ऐसे जो पेशेंट जो परसिस्टेंट वॉमिटिंग होते हैं, जो सिर्फ पार्ट टाइम ट्रीटमेंट हुई और उसके बाद ठीक हो गया और उसके बाद दोबारा से वॉमिटिंग, वहां पे लोकल कॉज रूल आउट करना, बाद दफा इवन गैस्ट्रिक म्यूकोजा की बायोप्सी लेना भी जरूरी हो जाता है. ओके मैम. ठीक है. तो ये सारा कुछ होगा फिर डिलीवरी के बाद, बिकॉज नाउ शी इज एट 32 वीक्स. अब तो उसके बाद थोड़ा ही टाइम उसका पीरियड रह गया. तो दूसरी चीज इसमें जो पूछी जा सकती है वो ये कि अब इसको कितनी देर एडमिट रखोगे. पेशेंट का एक बच्चा है 5 साल का, और आई डोंट नो फ्रॉम वेयर शी हैज कम, या उसका बाकी जो फाइनेंशियल स्टेटस या हस्बैंड का जो जॉब स्टेटस व्हाटएवर जो भी इसका प्रोफाइल है उसके हिसाब से फिर आपने डिसाइड करना है. बट अपेरेंटली इफ देयर इज नो अदर रीजन फॉर कीपिंग हर इन द हॉस्पिटल फॉर लॉन्ग टर्म टाइम, इसमें जिसमें कि कोई और ऐसी वजह नहीं है कि जिसपे हमें इसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत हो, तो फिर पेशेंट को कभी भी दाखिल ना रखें. जी मैम. आई विल आस्क द पेशेंट वीकली अगर पेशेंट आ सकता है आपके पास बार-बार जल्दी आ सकता है तो फिर उसको फ्रीक्वेंटली कॉल कर लें, उसको ओपीडी बेसिस पे इवैल्यूएट कर लें, लेकिन फिर उसको ऐसी अननेसेसरीली एडमिट ना रखें. और फिर जो आपने इस पेशेंट को जो एडवाइस एट डिस्चार्ज देनी है, यानी डिस्चार्ज हम 32 वीक्स वाले की बात कर रहे हैं जिसपे ये पेशेंट एडमिट हुई, वॉमिटिंग सेटल हो गई, हमने इसके एनीमिया की मैनेजमेंट कर ली, फिर इसके बाद हमने इसको डाइटरी एडवाइजेस ये सारा कुछ चीज़ें हमने एडवाइस कर दिया, बेबी को हमने एवेलुएट कर लिया, तो फिर हमने इसको एडवाइस दे के तो फिर घर भेज देना. फिर इसको हमने लॉन्ग बेसिस पे इसको अपने पास एडमिट नहीं रखना. तो अननेसेसरी एडमिशन भी एग्जाम में नहीं करने चाहिए. एग्जाम में क्या, अदरवाइज प्रैक्टिकली भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसमें जो एक्चुअली जो नीडेड पेशेंट है उनको बेड नहीं मिलता. और दूसरी बात ये कि हॉस्पिटल की कॉस्ट अननेसेसरीली इंक्रीज कर जाती है. थर्डली पेशेंट के लिए भी बहुत इनकन्वीनियंट होता है. फोर्थली जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं. जी मैम. इसलिए ये सारी चीज़ों का जो है, और उसको हमने वे करना होता है उसके रिस्क और बेनिफिट्स को. प्लेसेंटा प्रीविया है, मेजर डिग्री है, 32 वीक्स पे ब्लीड करती आई है, ब्लीड अभी भी कर रही है, तो उसको रखो, क्योंकि वो हो सकता है आधी रात को अगर वो ब्लीड ज्यादा करे, एकदम से कोलैप्स कर जाए, तो उसको घर से लाने वाला कोई ना हो, तो वहां पे तो हम इन सारी चीजों के रिस्क फैक्टर एक्सेप्ट कर लेते हैं. जी मैम. तो यहाँ पे हम इसको फिर स्टॉप करते हैं. ठीक है मैम. मैम एक क्वेश्चन है मैम. जी.
हाँ मैम, पूछना ये है कि अगर यहाँ पर स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबी आ रहा है तो हम फादर की जो है ना वो हाइट और वेट का पूछेंगे, और अगर पूछेंगे तो कहाँ पर फिट करेंगे? HOPI में हम रखेंगे उसको? असल में डेफिनेटली फादर की हाइट और वेट, उसका भी जो BMI है वो भी मैटर करता है, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली मैटरनल बट पैटर्नल एज वेल। एज वेल, तो यस मैम। इसलिए लेकिन अगर फर्ज किया वो ठीक भी है, लेकिन पेशेंट खुद बजाते खुद ऐसी है, उसका BMI इतना कम है, और पिछला भी बेबी उसका ऐसा था, और ये उसके बाद उसकी अपनी जो हिस्ट्री थी बर्थ की वो भी अपनी जगह पे, तो भी ये उसको एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन अगर आप पूछ लेते हो पैटर्नल हाइट एंड वेट, दैट इज इक्वली वैलिड, उसमें कोई मसले Yes, वाली ma'am. बात नहीं है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो दोनों तरफ से आता है, फादर और मदर दोनों से। जी मैम, जी ठीक है, ठीक है। डॉक्टर शहनाज मैम, ये बताइए कि अगर पेशेंट जो का आयरन स्टोर है वो हम क्या एंटीनेटली भी उसको रिस्टोर करेंगे? आयरन क्या स्टोर जो करेंगे? आयरन फाइव स्टोर डोज 5 डोजेस जो आयरन स्टोर्स के होते हैं, तो मैम क्या हम एंटीनेटली भी उसको देखो, रिप्लेनिश अगर करेंगे? तो फेरिटिन लेवल्स लो हैं, तो जो हम डोजेस कैलकुलेट करते हैं, जो डोज हम कैलकुलेट करते हैं अपनी, उसके लिए एक तो हमारा टारगेट हीमोग्लोबिन होता है कि हमने कहाँ तक हीमोग्लोबिन लेके आनी होती है, उसको जो फॉर्मूला के हिसाब से हम करते हैं, दैट टू सम एक्सटेंट रिप्लेनिश द स्टोर्स एज वेल, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो 2-3 हफ्ते में बन जाती है, उसके बाद जो बाकी आयरन होता है वो उससे स्टोर्स बिल्डअप होते हैं। यही वजह है कि हीमोग्लोबिन के बाद जब आप बाद दफा सीरम फेरिटिन करवाते हैं, दैट इज एडिक्वेट। इसी तरह से जब आप ब्लड भी लगाते हैं तो ब्लड में हीमोग्लोबिन तो इंस्टेंटली रिस्टोर हो जाती है, लेकिन जो उसके अंदर आयरन होता है वो दैट रिप्लेनिशेस द स्टोर्स। ब्लड बगैर आयरन के तो नहीं होता, उसके आरबीसीएस में भी आयरन होता है, उसके प्लाज्मा में भी आयरन होता है, और इक्वल टू 1 वीनो पर डोज के बराबर होता है, 250 मिलीग्राम के बराबर होता है, तो वो भी आयरन स्टोर्स को रिप्लेनिश कर रहा होता है। अलबत्ता अगर हम ओरल दे रहे हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन ठीक होने के बाद कम से कम 2 महीने लगते हैं आयरन स्टोर्स को बिल्डअप होने में, तो इसलिए आप हीमोग्लोबिन ठीक होने के बाद भी 2 महीने तक उसको आयरन टेबलेट्स देते जाते हैं। इस पेशेंट में तो हम इसलिए ओरल आयरन नहीं देंगे कि इसका कॉम्प्लायंस लेवल, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी GI इंटॉलरेबिलिटी, तो इस वजह से हम इसको अगर देंगे तो पैरेंटल आयरन देंगे। मैडम मैम इसका एक और क्वेश्चन है मैम, अगर फेरिटिन लेवल इज नॉर्मल इन दिस पेशेंट एंड ऑन electrophoresis we find the minor thalassemia, then what we will do in further management of this patient? उसके लिए सिर्फ ब्लड ही होता है। अगर माइनर थैलेसीमिया माइनर है और उसके आयरन लेवल ठीक है तो पैरेंटल आयरन सिर्फ उस सूरत में आप थैलेसीमिया माइनर में देते हो अगर सीरम फेरिटिन बहुत लो हो तो, क्योंकि जैसे हमारी पॉपुलेशन मेल नरिश्ड होती है, तो मेल नरिश्ड पॉपुलेशन में जाहिर है आयरन डेफिशिएंसी गो साइड बाय साइड, तो Yes, ma'am. उसमें अगर सीरम फेरिटिन लेवल बाद दफा लो सीरम फेरिटिन लेवल कंबाइन होते हैं अलोंग विद थैलेसीमिया माइनर, तो अगर ये बहुत लो हों जैसे 2, 3, 4 है इस तरह से करके हैं तो उसमें आप इंजेक्टेबल आयरन दे सकते हो। लेकिन चूंकि यूजुअल ये इसका सिनेरियो ये होता है कि इसमें सीरम फेरिटिन लेवल्स आर सपोज टू बी एडिक्वेट, सो Yes, व्हाट यू कैन गिव, मैक्सिमम व्हाट यू कैन गिव इज ओरल आयरन टेबलेट्स, बस सिर्फ उस हद तक। उसके अलावा आपने पैरेंटल आयरन नहीं देना होता, क्योंकि 3 ही तरीके हैं आयरन को हीमोग्लोबिन को बिल्डअप करने के, ब्लड लगाएं, पैरेंटल आयरन दें, या oral दें। Yes, या ma'am. क्रोनिक रीनल डिजीज में आप एरिथ्रोपाइटिन दे देते हो। तो मैडम अगर ये जैसे 32 वीक्स पे विद 7.6 हेमोग्लोबिन, आंसर कंप्लीट कर लें जरा पहले जो क्वेश्चन हुआ, तो इसमें आपने अगर सीरम फेरिटिन लेवल ठीक है और हीमोग्लोबिन लो लेवल पे चलती आ रही है तो आप सिर्फ इसको ब्लड के साथ ही रिस्टोर कर सकते हैं। ओके मैम, ओके। हाँ जी मैडम ये प्रिडनिसोलोन 32 का वीक्स डोज, पे मैडम प्रिडनिसोलोन का हम कितने अरसे तक प्रिडनिसोलोन का डोज और उसको कब तक जारी रखेंगे? प्रिडनिसोलोन जो प्लेटलेट्स के लिए हम दे रहे हैं, उसको कम से कम आप 3 हफ्ते तो देते हो और उसके बाद ग्रेजुअली टेपर ऑफ करते हो, ठीक है। डोज भी बता दे। डोज इसकी डोज जो है देखो वो मैंने बताया था कि वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू द सेवेरिटी ऑफ सिचुएशन, यानी बहुत अब्रप्ट फॉल कर रहा है, इतने इम्यूनोग्लोबिन लेवल ज्यादा हैं कि उसमें अब्रप्टली फॉल कर रहा है,
तो फिर आप उसकी डोज को ज्यादा रखोगे, फिर उसमें कम से कम आपने 5 मिलीग्राम की 2 टैबलेट्स 8 आवरली या 6 आवरली के हिसाब से, अदरवाइज 2 टैबलेट्स आप 12 आवरली भी दे सकते हो और 1 टैबलेट 8 आवरली भी आप दे सकते हो। बाज दफा जो बहुत ज्यादा ग्रॉस सिचुएशन नहीं होती, इसकी डोज वेरिएबल होती है। फॉर द एक्यूट बेसिकली जो एक्यूट फॉल्स हैं उसमें हमें ज्यादा हाई डोज की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम स्टॉप करें। जी थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन मैम प्लीज एक क्वेश्चन मैम। हमें अगर फॉर एग्जांपल इसी पेशेंट के अंदर प्लेटलेट काउंट इज 50,000 एंड आफ्टर द डिलीवरी नॉर्मल मैटरनल डिलीवरी बेबी इज डिलीवर्ड एंड वी टेक द कॉर्ड ब्लड सैंपल, कैन वी टेक द कॉर्ड ब्लड सैंपल फॉर द प्लेटलेट काउंट इन द फीटस? इम्यून अगर हम समझते हैं कि ये इम्यून हो सकता है तो वो इम्यून वो एंटीबॉडीज वो जो एंटीबॉडीज हैं जो उसके अगेंस्ट बनी हुई हैं वो चली जाएंगी प्लेसेंटा को क्रॉस करके और बच्चे में भी कर सकती हैं। सो यू कैन चेक दोस लेवल्स ऑफ एंटीबॉडीज इन द कॉर्ड सैंपल। तो उस सूरत में इफ देयर इज अ ग्रॉस फॉल, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है सीवियर स्टेज में आ जाता है, तो फिर आप कॉर्ड सैंपल को उसके लिए स्टडी कर सकते हो। ठीक है, with the collaboration of a pediatrician जी पीडियाट्रिशियन को भी हम इन्वॉल्व करेंगे? बिल्कुल करेंगे हम, ना सिर्फ बल्कि अभी पीडियाट्रिशियन के अलावा हम इस वक्त इस स्टेटस में अभी भी जो हम कर रहे हैं, यानी इसका अगर हम आईटीपी का सोच रहे हैं कि ये आईटीपी ही हो सकता है, तो हम हीमेटोलॉजिस्ट को अभी से इन्वॉल्व करेंगे। यस यूजुअली स्टीरॉयड की डोज वही कैलकुलेट करके हमें बता रहे होते हैं। जी मैम एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज, कि जो एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस की वैल्यूज हैं वो आफ्टर ट्रांसफ्यूजन चेंज होती हैं? बिल्कुल चेंज होती है, क्योंकि आप एक नॉर्मल ब्लड उसको ट्रांसफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें हीमोग्लोबिन A2 लेवल विल टेंड टू फॉल, तो इसलिए इसमें एक आम, और चूंकि हमने जो ट्रांसफ्यूज किए ब्लड एक आम इंडिविजुअल से, हमने एक हेल्दी इंडिविजुअल से ब्लड निकाला और एक एनीमिक इंडिविजुअल में डाला, तो उसमें जो उसके आरबीसीज हैं वो 120 डेज तक तो रहेंगे और उसके लेवल जो हैं वो HbA2 के लेवल को लेना जाना। तो मैम फिर कितने अर्से बाद इसको हम एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा लें अगर ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो? 3 महीने के बाद आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओगे आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। मैम 3 मंथ्स? जी मैम 3 मंथ्स कहा आपने? 3 मंथ्स 120 डेज जितनी लाइफ होती है ना आरबीसीज की, उसके बाद। ठीक है, ओके थैंक यू मैम। चलो ओके मैडम